بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج پارہ نمبر 24 کی تلاوت کی گئی۔ یہ اس پارہ کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے متقی کی تعریف بیان کی ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو سچ لے کر آیا، جاء بالصدق، صدق کے ساتھ آیا، سچائی کے ساتھ آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، حقیقت میں وہی لوگ متقی ہیں۔ اب اس آیت کا ایک معنی خاص ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو پہلا ہے نا والذی جاء بالصدق، اس سے مراد رسول پاک کی ذات اقدس ہے، اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صدیق کا لقب سب سے پہلے تاجدار کائنات نے انہی کو ہی عطا کیا، اور بالخصوص وہ جو شب معراج کی بات ہوئی، جب آپ نے آ کر بیان کیا کہ میں ایک ہی رات گیا ہوں مسجد اقصیٰ میں، نبیوں کی امامت کروائی ہے، پھر آسمانوں پہ گیا ہوں، اللہ سے ملاقات کی ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوڑے دوڑے آئے کفار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، نبیوں کی امامت کروائی ہے، ساتوں آسمانوں سے ہو کے عرش معلیٰ پہ اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ گیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ممکن۔ انہوں نے کہا پکے ہیں؟ آپ نے فرمایا پکا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ آپ کا دوست کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ ہے۔ انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کہا پہلے تو آپ نے فرمایا میں کسی عام بندے کی بات کر رہا تھا، اگر انہوں نے کہہ دیا تو یہ حق ہے، سچ ہے، وہ اس سے بڑی بات کر دیتے۔ وہ فرماتے ہم اس سے بڑی بات ان کی مان چکے ہیں بن دیکھے۔ انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم نے اللہ کو کب دیکھا ہے؟ ہم نے تو محبوب کے کہنے پہ مان لیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، بڑی بات مان چکے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ تو پھر آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا اس طرح کافر کہہ رہی ہیں؟ آپ نے کہا ہاں صدیق میں گیا ہوں، میں نے انبیاء سے بھی ملاقات کی اور اللہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ آپ نے کہا آقا میں نے بغیر سنے ہوئے آپ کی تصدیق کر دی ہے۔ فرمایا انت صدیق، آقا نے فرمایا کہ آپ سچے ہیں۔ اور صدیق ایک معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا بھی، صدق یصدق تصدیقا، تو صدیق سچا بھی ہے، اور صدیق کا معنی ہے جو کسی بات کی تصدیق کر دے، اسے بھی صدیق کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی عام ہے۔ معنی عام کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت مومن کو، متقی کو ایک خاص نور عطا کرتا ہے، اس نور سے وہ سچے اور جھوٹے بندے کی پہچان کر لیتا ہے۔ جو متقی ہوتا ہے نا، اسے اللہ ایک خاص نور عطا کرتا ہے، اسے خاص درجے کا ایک فہم عطا کیا جاتا ہے، وہ سچے اور جھوٹے میں تمیز کر لیتا ہے، فرق کر لیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ جو فرمایا نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یہ تو آپ نے سنا نا سب نے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر مومن کو ایک مرتبہ کہیں سے دھوکہ ہو جائے تو پھر وہ دوسری مرتبہ اس جگہ سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جسے تقوی کا نور نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ سچے اور جھوٹے میں اگر وہ تمیز نہ کر سکے، اس کا معنی کیا ہوا کہ اس کا ایمان بھی کامل نہیں اور اس کا تقوی بھی کامل نہیں، اس کا ایمان بھی کامل نہیں۔ اور ان آیات پر اور اس حدیث پر اپنی قوم کا حال بھی دیکھ لیں، اپنی پاکستانی
कौम का हाल भी देख लें कि हम कितनी बार धोखा खाते हैं और फिर भी अकल हमें सच्चे और झूठे की पहचान नहीं होती। ये क्यों नहीं हो रही? कि हमारे यहाँ ईमान की कमजोरी है। हमें वो नूर ही नसीब नहीं हुआ कि हम सच्चे और झूठे में फर्क ही कर सकें, तमीज ही कर सकें। तो यहाँ कुरान मजीद ने कहा मुत्तकी वो है जो सच लेके आया और जिसने उस सच की तस्दीक की। यानी आपके मुआशरे में अगर कोई ऐसा बंदा जो सच्ची बात कर रहा हो, हक की बात कर रहा हो, सही बात कर रहा हो, जिसे अल्लाह ईमान का नूर अता करेगा, वो उसकी पहचान कर लेगा। और तस्दीक का माना फिर दूसरा ये होगा, वो उसका साथ देगा। फिर आगे जाके इसी में एक और बात की कुरान मजीद ने, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा, अल्लाह तुम्हें वफात दे देता है हीन मौतिहा, मौत के वक्त। यानी मौत के वक्त अल्लाह पाक तुम्हारी रूहों को कब्ज़ कर देता है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और वो जिन्हें नींद के अंदर मौत नहीं आनी होती, फयुमसिकु, अल्लाह पाक उनकी रूहों को रोक लेता है। अल्लती क़दा अलैहल मौता, और जिन पर उसने मौत को कुछ सादिर कर दिया होता है, उनकी रूहों को वो अपने पास रोक लेता है। वयुरसिलुल उखरा इला अजलिन मुसम्मा, और दूसरी रूहों को जिनका भी दुनिया में रहना कुछ अर्सा बाकी होता है, उनकी रूहों को वापस भेज देता है। तो जब इंसान सो जाता है तो नींद क्या है? नींद को आप कहते हैं ना कि नींद मौत है। ये कुरान मजीद की इस आयत का माना है कि जैसे ही आपको नींद आती है, आपकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। और आप कभी सैरें भी कर रहे होते हैं नींद में, तो वो जिस्म तो आपका चारपाई पे होता है, तो वो आपकी रूह है। वो कभी जो आप, कोई नेक लोग तो मक्का मदीना की सैरें करते हैं, कोई पाकिस्तान की सैर कर रहा है, कोई यूरोप की सैर कर रहा है, कोई अमेरिका में पहुंचा हुआ है ख्वाब में। जिसकी जहां मोहब्बत होती है वो वहां पर उसकी रूह पहुंच जाती है। तो वो रूह जिस्म में नहीं होती, वो रूह जिस्म में। और अचानक आप दरवाजे पे नॉक करते हैं या आपका अलार्म बजता है तो आप उठ के बैठ जाते हैं, और अगर कोई वैसे ही आके दरवाजा बजा दे तो आप कहते हो कितना अच्छा ख्वाब देख रहा था, अभी तो मैं उधर पहुंचा था, आपने मेरी सारा वो मजे खराब कर दिया। वो क्या होता है कि रूह आपकी, और कई रूहें ऐसी होती हैं मौत के अंदर ही जाती और वापस ही नहीं आती। आपने कई कैसे से सुने हैं ना कि बंदा सोया है तो उठा ही कोई नहीं, सोया है वो जाके सोया है, सुबह उठा ही कोई नहीं। तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे ही वो रूह निकली वापस ही नहीं भेजी। आप उठने के बाद दुआ क्या करते हैं? एक हमें दुआ सिखाई गई है ना कि जब आप उठे तो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, जिसने मौत के बाद हमें दोबारा जिंदगी दे दी। तो ये नींद भी आपकी मौत है, और हर रात आप मौत की वादी से गुजरते हैं। जब आप सोते हैं तो मौत की वादी से गुजरते हैं। इसीलिए सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर कौल है कि सोने से पहले अपना हिसाब कर लिया करो। वो हर रात सोने से पहले अपना हिसाब किताब करके सोते थे कि मालूम नहीं रूह वापस ही ना आए। वो किसी से ज्यादती होती, बाकायदा तौबा करते, माफी मांगते। और कई बुजुर्गाने दीन का मामूल था, सोने से पहले वसीयत लिख लेते थे कि क्या खबर, उठो ही ना। ठीक, मोहतरम हाजी साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि जुमरात को एतिकाफ शुरू हो रहा है, तो आप लोग पहले बता दें ताकि हम उस हिसाब से, अगर किसी ने यहाँ बैठना है, कोई ना कोई एक मुसलमान तो बैठेगा, ताकि हम उसके लिए इंतजाम कर लें। तो कोई ना कोई कुर्बानी दे लेगी तो फिर किसी को जबरदस्ती कुर्बानी देनी पड़ेगी। सब एक तो ऑलवेज कुर्बान है ना हमारे पास।
अच्छा, फिर आगे इसी में एक और बड़ा प्यारा मजमून आया है। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दें, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कुल, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दें, या इबादी। अब ये कोई ज़ौक़ वाला हो ना, जिसे थोड़ा पता हो इसका माना और मफ़हूम का, अल्लाह पाक ने फरमाया या ऐ मेरे बंदो, यानी मेरा बंदा पहले कहा है। आगे जो बात आ रही थी ना कि अगर कोई गुनाह कर बैठो, कोई जुल्म कर बैठो, कोई नाफरमानी हो जाए तो कहीं बंदा डर ही ना जाए कि अल्लाह की नाफरमानी हो गई है, गुनाह हो गया है, पता नहीं कितना नाराज होगा। उसने डर दूर करने के लिए आगाज कहां से किया? ऐ मेरे बंदे, यानी मेरा बंदा उसने पहले कहा और फिर कहा अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अगर तुम अपनी जानों पे कोई इसराफ कर लो, ज़्यादती कर लो, कोई जुल्म कर लो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से फिर भी मायूस न हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। क्यों? इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, कि वो तो बड़ा गफूर है और बड़ा रहीम है। फिर आगे एक और बड़ा प्यारा मज़मून आया है, ये सूरह अल-मोमिन की आयत नंबर 7 में। आप तसव्वुर करें आपके लिए बख्शिश की दुआएं कहां कहां होती हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही। अल्लज़ीना, वो फरिश्तों की बात की। आपको मालूम है जो फरिश्तों में चार सबसे मुकर्रब फरिश्ते हैं ना, 4 सबसे बड़े मुकर्रब हैं, और उनके बाद दूसरे नंबर पर कौन से फरिश्ते आते हैं? जो सबसे दूसरे दर्जे पर मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं, वो हामिलीन अर्श हैं, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को थामा हुआ है। तो वो क्या करते हैं जो अर्श थाम के खड़े हैं? आप सोचें कभी, वो करते क्या हैं? अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है, वमन हौलहू, और उसके इर्द गिर्द हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की तस्बीह करते हैं, व युमिनूना बिही, और उस पर ईमान रखते हैं, व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और अहले ईमान के लिए बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। आप तसव्वुर करें कि हामिलीन अर्श आपकी बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। फिर इसके बाद बड़ा अहम मज़मून है और आखिरी सूरह हामीम सजदा का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लोग सहब इस्तिकामत होते हैं उनकी बात की और फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस पर इस्तिकामत है, अल्लाह को अपना रब मान लिया। रब का माना क्या होता है? पालने वाला, कफालत करने वाला, हाजतें ज़रूरतें पूरी करने वाला। रब में तरबियत भी आती है, तरबियत करने वाला। और जिन्होंने ये सोच लिया है कि हमारा रब अल्लाह है, फिर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कहीं झुके नहीं हैं, फिर जितनी मुश्किलात आई, जितने परेशानियां आई, जितनी आजमाइशें आई, सारी चीज़ों में वो इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। और ये टाइम लेती है इस्तिकामत। लेकिन अगर इंसान साबित कदम रहे तो फिर क्या होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर मलाइका उतरते हैं। यानी मलाइका सिर्फ अंबिया के ऊपर नहीं उतरते, मलाइका अहले इस्तिकामत पर उतरते हैं और आकर उनको कहते क्या है? अल्लाह तखाफू, आपने कोई खौफ नहीं करना, वला तहज़नू, और कोई गम भी। देखें ये खौफ और गम कब होता है? खौफ की कैफियत कब होती है? जब आपकी जान को खतरा होता है, आपको बड़ी मुश्किलात, मसाइब, परेशानियां। वो कहते हैं कि आपने खौफ गम भी नहीं करना, और क्या करना है? वह अबशिरू बिल जन्नत, जन्नत आपका इंतजार कर रही है।
नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम दुनिया की जिंदगी में आपके औलिया हैं, आपके साथी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं। व फिल आखिरा, और आखिरत में भी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और आपके लिए वो कुछ है जिसकी ख्वाहिश आपका नफ्स करेगा। तश्तही अनफुसुकुम, ये भी नहीं कि कोई दुआ मांगे। सब इस्तिकामत जब बंदा हो जाता है ना, तो वो फिर दुआ मांगने का मोहताज भी, वो उसके होंठ भी नहीं हिलते। मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारा नफ्स चाहेगा, बस तुम ख्वाहिश करोगे, अल्लाह पाक उसको पूरा कर देगा। साहिब इस्तिकामत को फिर ये दर्जा मिलता है। लेकिन साहिब इस्तिकामत होने के लिए बड़े मुश्किल मरलों से गुजरना पड़ता है। हमारी तबीयतें क्या है, हम उजरत पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं भाई जो मैंने मुंह से कहा है ना अभी हो जाए। हम इस्तिकामत वाले नहीं हैं, हम करामतों वाले हैं। क्या हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत के पास एक शख्स आया आपका मुरीद होने के लिए। उसने आपके साथ कोई महीना सवा महीना गुजारा, उसने आपकी कोई करामत न देखी, कोई वो जाने लगा। आपने पूछा भाई आप तशरीफ लाए थे, आप जा रहे हैं, खैरियत से आए थे? उसने कहा मैं आपका मुरीद होने आया था। क्या? आपने कहा फिर आप मुरीद तो नहीं हुए। उसने कहा जी मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी, मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। आपने कहा अच्छा करामत नहीं देखी, ये बताओ कोई अमल ताजदारे कायनात की शरीयत के खिलाफ भी देखा है? उसने कहा नहीं वो भी कोई नहीं देखा। आपने फरमाया जाओ हमारी बारगाह में से बड़ी कोई करामत नहीं। सबसे बड़ी करामत क्या है? ताजदारे कायनात की शरीयत पे रहें, सुन्नत पे रहें, आपके नक्शे कदम पे रहें, इससे बड़ी कोई करामत नहीं। और आप इस पे कायम रहेंगे, फिर आपको हाथ उठा के दुआ करने की नौबत भी नहीं आएगी। लेकिन ये चीजें फिर जैसे मैंने अर्ज किया, ये चीजें टाइम लेती हैं। अल्लाह आपका इम्तिहान लेता है कि बंदा वाक़ईतन साहिब इस्तिकामत है या नहीं है। इसलिए तसव्वुफ में कहते हैं अल इस्तिकामत फौकल करामत, दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करना। और हमारी बदनसीबी ये है, और बिलखुसूस हमारे मसलक की लोगों ने करामतों के इतने तमाशे बना दिए हैं, अब तो इतने ढूंढ बन गए हैं करामतों के, और इतना ज्यादा वो चूंकि बिजनेस हो गया ना सारा का सारा, बाकायदा प्रमोटर रखे हुए हैं, मैनेजर रखे हुए हैं, पीर साहब की करामतें बयान हो रही हैं, ऐसी ऐसी करामतें बयान हो रही होती हैं, आप देख के दंग रह जाएंगे कि ये क्या है। और न उन्हें कोई दीन का पता, न ताजदारे कायनात की सुन्नत का पता, न शरीयत का पता, न कुरान मजीद का पता। बात करते हैं उनको कुरान मजीद पढ़ना भी नहीं आता, यानी आप कोई एक आयत ही उनसे सुन लेना, एक आयत भी दुरुस्त नहीं पढ़ सकते। लेकिन लोगों ने उनको पत्नी क्या से क्या बना रखा है। और करामत जैसे मैंने आपको अर्ज किया ना, अच्छी चले ये भी किसी से अर्ज करूंगा, जो खिलाफे फितरत चीजें होती हैं ना या हटकर होती हैं, उसकी 3 किस्में होती हैं, बाद में ज्यादा भी लिखी हैं। जैसे नबी से मोजज़ा होता है, वली से करामत होती है, एक इस्तदराज भी होता है जो कुफार के हाथों भी होता है। सामरी भी वो भी तो करामत ही थी ना, अगर उसकी नेचर देखें तो। सामरी ने जो किया था कि सोने का बच्चा बनाया और कलाम करने लग गया। इस तरह के और भी कुछ वाक़यात हैं जो जिन्नात शैतान जिन करते हैं, वो जिनके दोस्त हो जाते हैं ना, फिर उनके लिए वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, लोग देखते हैं वो कहते हैं तो बड़ा साहिब करामत है। तो चूंकि लोगों को ये तमीज़ भी नहीं होती कि करामत में और इस्तदराज में और मुइज़ा में फ़र्क क्या होता है। तो कई ऐसे काम होते हैं। हज़रत दाता साहब रज़ी अल्लाह ताला का जो मशहूर वाक़या है, हिंदू जोगी था वो हवा में उड़ने लग गया, सुना हुआ है ना, जो सबसे पहले आपका वो जो मुरीद हिंदी है, बाद में फिर वो मुरीद हुआ, वो हिंदू था, मुसलमान भी नहीं था। उसने ऐसे ऐसे वो यानी फाके किए और मुराकबे किए और कुछ वो जो हिंदुओं के होते हैं तरीके चिल्ले चिल्ले किए, उसको भी निज़वान हासिल हो गया और वो हवा में उड़ने लग गया। और दाता साहब को चैलेंज किया कि आप आएंगे और हवा में उड़े। तो दाता साहब तो फिर साहिब इस्तिकामत थे ना, उन्होंने कहा कि मैंने क्या हवा में उड़ना है, ये हवा में उड़ना कौन सा कमाल है, ये परिंदे भी उड़ते हैं, ये मक्खियां भी उड़ती हैं, ये कौन सी कोई करामत है हवा में उड़ना। उसने कहा नहीं आपको उड़ना नहीं आता। आपने कहा आप उड़े। आपने अपनी जूतियों को हुक्म दिया कि जाओ इसको जरा नीचे लेके आओ।
آپ کی جوتیاں ہوا میں گئیں اور اس کے سر میں لگیں اور اس کو لے کے آ گئیں. یہ ہوتا ہے صاحب استقامت. اس کے جوتے پھر وہ کام کرتے ہیں. اگر انسان صاحب استقامت ہو جائے تو وہ کرامت والوں سے بہت اوپر چلا جاتا ہے. تو ہمیں صاحب استقامت بننا چاہیے, دین پہ ثابت قدم رہیں. یہی سب سے بڑی کرامت ہے, یہی سب سے بڑی ولایت ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آپ اس دور میں آ گئے ہیں, لوگوں نے استقامت چھوڑ کے اس طرح کے ڈھکوسلوں کے پیچھے اور کرامتوں کے پیچھے پڑے گئے ہیں اور دین اور شریعت کو بالکل چھوڑ دیا ہے. تو قرآن مجید کی آیت نے بتایا کہ اگر آپ صاحب استقامت ہو جائیں گے تو جو پھر آپ چاہیں گے اللہ پاک کر دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم نور قلوبنا بنور القرآن. اللہم زین اخلاقنا باخلاق النبی الکریم الامین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا ویا دافع البلیات ادفع بلیاتنا ویا حل المشکلات حل المشکلاتنا ویا شافی الامراض اشفا مرضانا. مولا ہمارے سب بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما, اور بالخصوص ہمارے محترم شبیر امان صاحب کے بھائی بیمار ہیں, میرے مولا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے محترم حاجی عمر صاحب کے عزیز بیمار ہیں, ان کو صحت اور شفا عطا فرما. ہمارے بہن بھائیوں میں سے, اولاد میں سے, رشتہ داروں میں سے جہاں بھی کوئی بیمار ہے, اس ماہ مبارک کا صدقہ, نزول قرآن کا صدقہ, میرے مولا اپنی رحمتوں کا, برکتوں کا, بخششوں کا, اپنی رحمت کے صدقے سب بیماروں کو شفا عطا فرما. سب کی دعائیں اپنے میرے مولا ان سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. میرے مولا ان سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے, برکتوں سے بھر دے. میرے مولا سب کے گھروں میں خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.